Okay, Ji, welcome back. And we were talking about logistics. And when we talk about logistics, it is said that logistics management is that part of supply chain management that plans, implements, and controls the efficient, effective, as I was telling you, forward and reverse flow. Number 2, storage of goods. Number 3, services. And number 4, concern in logistics is related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customer requirements. ओके जिसके बरक्स ऊपर वाली डेफिनेशन में अगर हम देखें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के केस में जो मैंने हाईलाइट पॉइंट्स किए हुए हैं, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, कन्वर्जन, डिमांड क्रिएशन एंड फुलफिलमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन, ये आपके बिगर पर्सपेक्टिव्स हैं एज कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हिच आर मोस्टली पार्ट एंड concern of the logistics aspect. Obviously, with the logistics, we are also talking about relationships with inbound logistics and outbound logistics, and likewise. Okay. Now, moving one step further, let me further clarify the difference between logistics and supply chain management. It is said that logistics is the process of strategically managing the procurement, movement, and storage of materials, parts, and finished inventory, and the related information flows through the organization and its marketing channels in such a way that current and future profitability are maximized through the cost-effective fulfillment of orders. जिसके बरक्स अगर हम दोबारा से सप्लाई चेन नेटवर्क की कोड डेफिनेशन को देखें as defined by Stock and Boyer in 2009, it is said that the management of a network of relationships within a firm and between interdependent organizations and business units consisting of material suppliers, purchasing, production facilities, logistics, marketing, and related systems that facilitate the forward and reverse flow of material, service, finance, and information from the original producer to final customer with the benefits of adding value, maximizing profitability through efficiencies, and achieving customer satisfaction. Now, this is a very comprehensive definition which I am just discussing with you, जिसमें के बहुत सारे factors को हमने देखा कि supply chain के case में it is not just the purchase and procurement, it is not just the movement of the products from inbound logistics to the outbound logistics. It is basically talking about a comprehensive framework जिसमें के बहुत सारे intermediaries, बहुत सारे जो stakeholders हैं वो involve हो जाते हैं. Likewise, अगर हम procurement के expression को थोड़ा सा in depth देखें कि what we actually mean by the word procurement, it means that procurement includes developing fundamental requirements establishment, market research evaluation, and sourcing, standards of quality, financing, purchasing, negotiating price, buying goods, inventory control, and disposal of waste products like the packaging. ये तमाम चीजें आपके procurement के साथ associated वो कहलाती हैं. So in the overall supply chain process, procurement stops once your company has possession of the goods. Okay, so to make a profit, the cost of procuring your goods must be less than the amount you can sell the goods for. ये उसका जो typical हमें phenomena अब वो नजर आ रहा है कि जिसमें हम cost benefit को concern में रख रहे हैं, minus whatever costs are associated with processing and selling them. तो obviously आपको profit side के ऊपर focus अपना वो रखना होगा in terms of procurement. So this also includes meeting the specifications, assessing risks, and manage tendering, etc. So ये जो tender का आपका सारा जो functioning होगा, that is part of the procurement side. Okay, so procurement is the process of getting the goods you need, while supply chain is the infrastructure. Okay, this is very important expression. I have put it in the bottom line. Okay, procurement is the process of getting the goods you need, while supply chain is the infrastructure which is extensive in many cases needed to get you those goods. Okay, इसी के साथ हमें एक और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है, that is known as purchasing. When we look at the definition of the purchasing, it is said that the term purchasing generally means the process of ordering and receiving products and services. The process involved in purchasing includes request for goods, approving and making of record for purchase, and receiving products. Okay, so we should be clear that the difference between what is the difference between the purchasing, procurement, logistics, and supply chain, and these are important expressions because without these understandings, we would not be actually able to comprehend that how they are manifested in our overall operations of the organization. Now, supply chain design for a manufacturing industry and what is the difference between a manufacturing industry supply chain and the service industry management perspective. Now we are looking at these aspects. When we talk about the supply chain design for a manufacturing and service industry perspective, the 4 things are to be discussed: inputs, logistics, finished goods, and optimization.
When we talk about the inputs, it is said that the primary difference is that most of the cost of manufacturing labor is involved in procuring, transporting, and manipulating physical material, while almost all service industry labor is expected or expended on manipulating information and developing relationships. Okay, तो ये एक major difference हमें यहाँ पर नजर आया. Because of this difference, capital investments in machinery and equipment are typically much higher in manufacturing industry. जब हम लॉजिस्टिक्स में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द सर्विस एंड द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो वो कहा जा रहा है कि व्हाइल द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ट्राइज टू नेगोशिएट बेटर शिपिंग रेट्स and fill containers with products to reduce the unit cost, the service industry upgrades servers and installs new software to speed the flow of communication, thereby reducing the labor cost necessary to produce a finished product. Okay, तो अब हमें लॉजिस्टिक्स में भी एक फर्क नजर आया कि what is the difference between the service side of the supply chain and the manufacturing side of the supply chain. When you talk about obviously finished goods, so however the goal is the customer who is satisfied with the product or the service, that remains the same. Optimization की जब हम बात करेंगे तो it is said that in a manufacturing organization, optimization of the supply chain is accomplished primarily by improving speed of delivery and reducing cost. Okay, so companies work to reduce physical bottlenecks and inventory and negotiate better pricing on raw materials. The main way to speed production is to find a faster way to move or manipulate the components. And a research paper published by Eastern Illinois University points out that the main drivers of optimization in a service model are relationships and information flow. Okay, तो अब वहां पर जो bottlenecks हैं in case of manufacturing concern, they are different from the drivers of optimization which are now taken up as relationship and the information flow. Okay, अभी हम इसकी फर्दर डिटेल को गो थ्रू करेंगे जिसमें आपको मैं सर्विस इंडस्ट्री के जो सप्लाई चेन नेटवर्क्स हैं उसके ऊपर कंप्रीहेंसिव टॉक वो आपसे डिस्कस वो करता हूं. So, जब हम सप्लाई चेन फॉर फिजिकल गुड्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो टिपिकल नेटवर्क डायग्राम वो आती है, दैट इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम the suppliers, or suppliers say material and the components are reaching to the manufacturing. The manufacturing side is giving the materials after manufacturing, after value addition to the distributors. Those distributors are providing the products to the retailing. From the retailers, customers are going to buy the products, and obviously there would be the next step which is known as customer service. अब कस्टमर से एक हमारे पास फीडबैक लूप वापस आ रहा है जिसमें कि हम द कस्टमर इंफॉर्मेशन को भी टैकल कर रहे हैं. उसके अलावा रीसाइक्लिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग के अगर कोई इश्यूज है, रिवर्स ऑर्डर्स की अगर बात की जा रही है तो वो भी एंटरटेन वो हो रहे होंगे. ठीक है, अब यहां पर इस डायग्राम में there are two types of arrows demonstrated, the solid arrows and the dashed arrows. Solid arrows are basically representing the material transfer and the dashed arrows are basically representing the information transfer. और ये दोनों चीजें एक सिंक्रोनाइजेशन पैटर्नाइजेशन फॉर्मेट में ऑपरेट करेंगी जिससे कि हम वैल्यू कैप्चरिंग, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू को क्रिएशन के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट वो करते हैं. अगर हम कस्टमर सप्लायर डुअलिटी इन सर्विस सप्लाई रिलेशनशिप्स की बात करें तो सर्विसेज के केस में देयर इज सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर इज यूजुअली इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सर्विस प्रोवाइडर. ओके, सो यूजुअली सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जो इंटरमीडिएरीज हैं दे आर वेरी फ्यू और नन. कस्टमर्स आर इन डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो यहां पर अब हमारे पास इंटरमीडिएरीज की जो है वो गुंजाइश कम पाई जा रही है और प्लस सप्लायर्स ऑफ द ऑब्वियसली सर्विस फैसिलिटी वो वहां पर मौजूद होंगे और उसके साथ हमें कंप्रीहेंसिव इंप्रूवमेंट के लिए प्रॉपर सर्विस डिजाइन की जरूरत है ताकि कस्टमर एफिशिएंसी, कस्टमर इफेक्टिवनेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन तमाम चीजों को हम इंश्योर वो कर सकें. अब इस एक्सप्रेशन ऑफ सर्विस सप्लाई रिलेशनशिप को थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट करने के लिए आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू सिंगल लेवल बाई डायरेक्शनल सर्विस सप्लाई रिलेशनशिप. इसमें हमारे पास चार मेन एस्पेक्ट्स में बात की जाएगी. वी हैव गॉट सर्विस कैटेगरी, उसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. देन वी हैव द कस्टमर एंड सप्लायर कॉन्टैक्ट. Then we have the input and the output concern related to that particular service, and then we are needing to talk about the service provider. For example, the first category we have of the service delivery is related to the minds. Okay, and the customer supplier is going to be the student, and the input output are going to get is the mind development and the knowledge enhancement, and the service provider would be taken up as a professor.
Another example is that service category is the bodies, the customer and supplier at the same time is the patient, and the input output is basically the tooth and the filling, and the service provider in this case is the dentist. Another expression is that the service category is belongings, the customer supplier is the investor, the input output is money and the interest you get on it, and the service provider is the banker. Another expression in service category is information, the service supplier is the customer and supplier is the client, and the input output is the documents and the income tax return, and obviously the service provider is the tax preparer. ओके सो यहाँ पर अब हमने इन तमाम एसोसिएशंस को जो इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाई थी कि वी हैव कस्टमर, वी हैव सप्लायर, वी हैव सर्विस डिजाइन एंड वी हैव सर्विस प्रोवाइडर, इनकी एसोसिएशन को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपके साथ वो डिस्कस किया। इसी तरह अगर हम टू लेवल बाई डायरेक्शनल सर्विस सप्लाई रिलेशनशिप की बात करें तो उस केस में अब हमारा जो ये टेबुलर डिस्कशन है ये एक्सटेंड कर जाती है, बिकॉज अब हमने टू लेवल बाई डायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट की बात करनी है। वी हैव द सर्विस कैटेगरी माइंड, द कस्टमर सप्लायर इज पेशेंट, द इनपुट आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रीटेड, द सर्विस प्रोवाइडर इज द थेरेपिस्ट, द इनपुट आउटपुट इज द prescription and the drugs, and the service provider at the next level is pharmacy. इसी तरह bodies, we have patient, we have blood and diagnosis, we have a physician as a service provider, we have sample test results, and then we also have the lab. इसी तरह belongings में we have the driver, we have car and repaired as input and output aspects, we have service provider as garage, we have input and output as engine and rebuild, and we have the machine shop as well. इसी तरह अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो वी हैव होम बायर, देन वी हैव इनपुट एंड आउटपुट एज प्रॉपर्टी एंड लोन, वी हैव सर्विस प्रोवाइडर एज मॉर्गेज कंपनी, वी हैव इनपुट एंड आउटपुट एट द सेकंड लेवल एज लोकेशन एंड क्लियर टाइटल, एंड देन वी हैव द प्रोवाइडर्स सर्विस प्रोवाइडर जो हमें सेकंड लेवल के ऊपर अवेलेबल हो रहा है, दैट इज अ प्रोवाइडर सप्लायर एंड दैट इज योर टाइटल सर्च। ओके सो अब आप डिफरेंट लेवल्स के ऊपर सर्विस ओरिएंटेशन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकते हो। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के केस में वी हैव सप्लायर, वी हैव सप्लायर्स सप्लायर, देन वी हैव सप्लायर सप्लायर सप्लायर, और उसी तरह वी हैव द buyer of the manufacturing product, and then we have the buyer's buyer, and then we have the buyers and buyers. So इस तरह हमारे पास सिंगल टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर जो ओरिएंटेशंस हैं वो सप्लाई नेटवर्क्स में एस्टैब्लिश होनी वो शुरू हो जाती हैं। So we are looking at now sources of value in service supply relationships. It can be bidirectional optimization, जिसमें कि दोनों पार्टीज जो हैं वो exchange of information and exchange of material and products की बात वो कर रही हैं। Managing the product capacity, जिसमें कि आप transfer of the knowledge की बात कर रहे हो कि make knowledge available, this is web-based fact databases कही जा सकती हैं। Then there is a replacement context, जिसमें कि substitute technology for server, for example it can be the digital blood pressure डिवाइस जिसने के रिप्लेस कर दिया एक सब्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी के साथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, और सर्वर की जो ओरिएंटेशन है वो उससे ज्यादा बेहतर हो जाती है। इसी तरह एम्बेलिशमेंट का जिक्र किया जाता है जिसमें के अनेबल सर्विस सेल्फ सर्विस बाय टीचिंग, जिसमें के चेंज सर्जिकल ड्रेसिंग फॉर एग्जांपल आपको सेल्फ इंस्टॉलेशन का कहा जा रहा है, आपको सेल्फ सर्विस का वो कहा जा रहा है। तो देयर आर कपल ऑफ एस्पेक्ट्स जिसमें कि आपने अपनी सर्विस एबिलिटी को भी कस्टमर के साथ शेयर वो कर लिया। इसी तरह वी आल्सो नीड टू टॉक अबाउट, जब हम सर्विस एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कि मैनेजमेंट ऑफ पेरिशेबिलिटी, बिकॉज सर्विसेज आर मोर एंड मच मोर पेरिशेबल एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। सो पेरिशेबिलिटी को भी मैनेज करना, दैट इज अगेन वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इन द सर्विस एस्पेक्ट। अब हम उस केस में बहुत सारे ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज को भी यूज कर रहे हैं, हम बहुत सारे केसेस में सर्विस को प्रिजर्व करने के लिए नॉलेज मैनेजमेंट की वो बात भी कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी नीड टू फोकस अपॉन। अब जब हम इंपैक्ट ऑफ सर्विस सप्लाई रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो उसमें सर्विस सप्लाई रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए द थिंग्स वी नीड टू टॉक अबाउट आर linked with channel structure, service recipient, channel integration, flow of service, flow of information upstream and downstream in either case, so business processes and the demand management. In case of suppose channel structure, when we talk about service supply chain networks, तो पहले जो इनिशियली बात की जाती थी, there was functional silos. ओके सो वहां पर मार्केटिंग फाइनेंस हर किसी के अपने ऑपरेशंस है, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और फंक्शनल ओरिएंटेशन एस्टैब्लिश वो की जाती थी। लेकिन मॉडर्न मैनेजमेंट में आकर जब हम सर्विस सप्लाई चेन नेटवर्क्स की और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो रादर देन फंक्शनल साइलोस द फोकस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द प्रोसेस ओरिएंटेशन। इसी तरह सर्विस रेसिपिएंट की अगर हम बात करें तो
initially it was passive but now it is talking about active as a co-producer. जैसे हमने शुरू आज के डिस्कशन में बात की थी कि the customer is not just a customer, वो co-producer भी है value creation के context में. So that is the concept written over here कि आप service recipient is also active as a co-producer. जब हम channel integration की बात करते हैं तो initially it was only vertical like on the channel to integrate. ओके लेकिन इन द मॉडर्न एक्सप्रेशन आफ्टरवर्ड्स हमें जो सिचुएशन और सिनेरियो का सामना करना पड़ रहा है इसमें वी टॉक अबाउट वर्चुअल नेटवर्क्स. IT and other mechanism permit integration without ownership. Okay, so virtually जो connections हैं they are being established and they are being utilized. Flow of service की जब हम बात करते हैं तो available waiting for demand, जबकि एक्टिव जब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं मॉडर्न एक्सप्रेशन में तो एक्टिवेटेड अपॉन डिमांड के द मोमेंट यू पुट द डिमांड एंड द ऑर्डर इज बीइंग फुलफिल्ड, तो उस केस में उस तरीके से आप 24/7 सर्विसेज के साथ वो अवेलेबल हो. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर traditionally the before it was the pull aspect जिसमें के manual reporting of demand data results in delayed management responses, जबकि modern expressions में afterwards जो हमें चीजें देखने को मिल रही हैं that is push perspective जिसमें के high level of connectivity and transparency with fast or instantaneous access to most recent demand data उसकी बात वो की जाएगी. and every सेकंड इज इवन बीइंग रिकॉर्डेड. आपको हर सेकंड में पूरी दुनिया में कौन सी प्रोडक्ट कहां पर किस काउंटर पर किस मिकदार में बिक रही है इसका कंप्लीट डाटा आपके पास बारकोड स्कैनिंग कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डाटा इंटरचेंजेस इन सब के जरिए आपको अवेलेबल वो हो रहा है. सो इसी तरह अगर हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डाउनस्ट्रीम की बात करें तो लिटिल और नो नॉलेज ऑफ रिसोर्स डिप्लॉयमेंट ये आपका पुराना स्टाइल था, ऑर्थोडॉक्स वे था, जबकि मॉडर्न स्टाइल में रियल टाइम ट्रैकिंग एंड डिस्पैचिंग के ऊपर बात वो की जा रही है. बिजनेस प्रोसेसेस के हवाले से प्रीडोमिनेंटली इन हाउस लोकली ऑप्टिमाइज्ड फॉर एफिशिएंसी का जिक्र किया जाता था, जबकि मॉडर्न वर्ल्ड में इन हाउस फॉर की प्रोसेसेस, अदर्स आउटसोर्स्ड for flexibility, integrated and synchronized to match supply with demand. इन तमाम चीजों का यूज किया जाता है और आउटसोर्सिंग के ऊपर भी अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आउटसोर्सिंग फैसिलिटी से हमने सप्लाई चेन्स को कैसे फैसिलिटेट किया. इसी तरह अगर हम डिमांड मैनेजमेंट की बात करें तो लिमिटेड टू यूज ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड रिजर्वेशंस ये हमारा कंसर्न था, लेकिन मॉडर्न एक्सप्रेशंस में वी हैव प्रोएक्टिव इन्वॉल्विंग कस्टमर इन शेड्यूलिंग टू अचीव बाई डायरेक्शनल ऑप्टिमाइजेशन, और वहां पर सेल्फ सर्विस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है जिसमें कि कस्टमर खुद से अपनी अपॉइंटमेंट खुद से अपने रिजर्वेशंस वो सेट कर पाता है और जिससे कि उसकी जो एफिशिएंसी ऑफ सर्विस डिलीवरी है इट हैज बीन मल्टीप्लाइड. लाइकवाइज अगर हम कैपेसिटी मैनेजमेंट की बात करें तो इनिशियली लिमिटेड टू यूज ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, लेकिन आफ्टरवर्ड्स इसमें जो डेवलपमेंट हमारे पास आई दैट इज फोकसिंग अपॉन क्रिएटिव यूज ऑफ क्रॉस ट्रेन्ड एम्प्लॉइज, आउटसोर्सिंग एंड कस्टमर सेल्फ सर्विस. इसी तरह फैसिलिटेटिंग गुड्स में इट वाज हाई इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, जबकि आफ्टरवर्ड्स जो हमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है दैट इज लोअर ओइंग टू प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी कि आपको एग्जैक्टली बुलवेप इफेक्ट्स को अवॉइड करके एग्जैक्टली यू नो हाउ मच एंड व्हेन. सर्विस डिलीवरी की अगर हम बात करें तो इनफ्लेक्सिबल, स्टैंडर्डाइज्ड, इम्पर्सनल, और मॉडर्न इफेक्ट्स में दैट इज फ्लेक्सिबल, पर्सनेबल विद कस्टमाइजेशन पॉसिबल. सो बहुत सारी हमें इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जिसमें कि आप अपनी कस्टमाइजेशंस के साथ अपनी ओरिएंटेशन विद द सर्विस ज्यादा से बेहतर वो बना सकते हो. रूटिंग एंड शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें तो इनिशियली इट वाज स्टैटिक एंड फिक्स्ड डेली स्केड्यूल्स, जबकि डायनामिक केस में बेस्ड ऑन सिस्टम कनेक्टिविटी एंड प्रोसेस विजिबिलिटी. न्यू सर्विस डिजाइन में मार्केटिंग इनिशिएटिव्स बेस्ड ऑन फर्म्स परसेप्शन ऑफ कस्टमर नीड्स, जबकि मॉडर्न एक्सप्रेशंस में वर्चुअल वैल्यू चेन डिजाइन विद कस्टमर डेटाबेस इंफॉर्मेशन ड्राइविंग न्यू सर्विसेज. प्राइसिंग के केस में इट वाज इनिशियली फिक्स्ड, यही तस्वीर किया जाता था, जबकि मॉडर्न केस में इट इज वेरिएबल. Yield management promotes off-peak demand and avoid idle capacity, और उस केस के अंदर आप अपने प्राइसेस को फ्लक्चुएट भी कर सकते हो बेस्ड अपॉन कि आपने किस तरीके से मार्केट डायनामिक्स के साथ अपने आप को मैचअप वो करना है. So international operations के केस में traditionally it was only focusing upon the domestic market, लेकिन modern world में you are reaching to the world, you are focusing upon the connectivity and the internet facility, and it is evolving the more localized concern in which you are thinking global and acting local phenomena. अब आउटसोर्सिंग सर्विसेज की अगर हम डिस्कशन करें तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि अलाउज द फर्म टू फोकस ऑन इट्स कोर कंपिटेंस. ओके, सो आपका मेजर फोकस अपनी कंपिटेंस एनहांसमेंट पर होगा और जितने एस्पेक्ट्स आप समझते हो कि दे आर नॉट ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन आप उनको आउटसोर्स कर सकते हो टू सेव द टाइम एंड ऑब्वियसली द कॉस्ट.
ओके और आउटसोर्सिंग में बात हमेशा याद रखिएगा कि वी हैव टू कीप द कॉस्ट लो एंड वी हैव टू हैव द हायर क्वालिटी. Okay, that is the trick of the game in outsourcing perspective. So service is cheaper to outsource than perform in house. ओके सो ये डिपेंड करेगा कि वो सर्विस आपकी मेन एस्पेक्ट वो किस कंसर्न के अंदर हम बात कर रहे हैं. प्रोवाइड्स एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लीवरेज बेनिफिट्स ऑफ सप्लायर इकोनॉमी ऑफ स्केल. उस जरिए से आप आउटसोर्सिंग को यूटिलाइज और एक्सप्लॉइट वो कर सकते हो. इसमें जो रिस्क्स इन्वॉल्व होंगे दे आर नंबर 1 लॉस ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्वालिटी, नंबर 2 jeopardizes employee loyalty, number 3 exposure to data security and customer privacy, number 4 dependence on one supplier compromises future negotiation leverage, and obviously there can be another risk which is additional coordination expense and delays, and obviously atrophy of in-house capacity or capability to perform service. ओके तो दीज आर ऑल द रिस्क्स इन्वॉल्व अगर हम सर्विसेज को आउटसोर्स करने के बारे में वो प्लान आउट करते हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि उस सर्विस एस्पेक्ट के किस पार्ट को आप आउटसोर्स वो करना चाह रहे हो. एंड समटाइम्स रिमेंबर कि आप अपनी कोर कंपिटेंसी को आउटसोर्स वो जनरली नहीं करते हो. So outsourcing का जो process इस केस में यूज किया जाएगा that would be basically following through 4 stages and phases. Number 1 would be the need identification, then there would be information research, and then there would be vendor selection, and then performance evaluation. In case of need information or need identification, we have to come up with the problem definition that why do we need to go for outsourcing. Then we have to make or buy decision, which is do versus buy analysis. Then and obviously that would be based upon cost versus benefit analysis, and then involve interested parties and specification development. From there we move towards the information search, that who are the prospective areas and the people to whom we can go for the outsourcing. So the references, personal contact, recommendations, trade directory, these are the ways from which you can get the information. Then you have to come up with a vendor selection. उसके लिए obviously you can come up with a tender. उसके मुताबिक फिर आप shortlisting करोगे, and then you come up with the final idea. So experience, reputation, references, cost, location, size, ये तमाम factors हैं जिनको मद्देनजर रखकर आप vendor selection अपनी वो करते हो, आप shortlist करते हो that who is going to win the tender. So performance evaluation के केस में जब आपने उनके साथ वर्किंग शुरू कर दी, तो we have to develop the evaluator, we have to talk about the quality of work, we have to talk about the communication networks, we have to look into meeting of the deadlines, flexibility and dependability are the factors we need to focus upon. Okay, so these are few of the parameters जो performance evaluation में आप use वो कर रहे हो. So this is how the outsourcing process related to the organizational facility ये चीजें incorporate की जाती हैं. अब हम एक taxonomy देखते हैं of outsourcing business services. हमारे पास 2 मेजर कंसर्न्स हैं. एक है फोकस ऑफ सर्विस, जिसमें कि हम प्रॉपर्टी, पीपल एंड प्रोसेस की बात करेंगे, और दूसरा हमारा कंसर्न है इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस, जिसमें कि हम लो एंड हाई की बात कर रहे हैं. यहां पर आपके साथ मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ चीजों को आउटसोर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में वाजिया वो करूंगा. अगर हमारा फोकस ऑफ सर्विस प्रॉपर्टी है और इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस लो है, तो वी नीड टू गो फॉर फैसिलिटी सपोर्ट, जिसमें जैसा कि लॉन्ड्री, जेनिटोरियल सर्विसेज, आपका वेस्ट डिस्पोजल. अगर हमारा फोकस ऑफ सर्विस प्रॉपर्टी है और हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस हाई है, तो वी नीड टू गो फॉर इक्विपमेंट सपोर्ट, जिसमें के रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग जैसे जो एक्सप्रेशंस हैं वो यूज किए जाते हैं. अगर हमारा फोकस ऑफ सर्विस पीपल है और इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस लो है, तो वी नीड टू गो फॉर एम्प्लॉय सपोर्ट, जिसमें के फूड सर्विस, प्लांट सिक्योरिटी, टेम्पररी पर्सोनल, इन सब का जो आउटसोर्सिंग कॉन्टेक्स्ट है उसको देखा जाएगा. लेकिन अगर फोकस ऑफ सर्विस पीपल है और इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस हाई है, तो उस केस में एम्प्लॉय डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है. दैट वुड बी रिलेटेड टू द ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर. अगर हमारा फोकस ऑफ सर्विस प्रोसेस हो और इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस लो हो, तो उस केस में हम फैसिलिटेटर नेटवर्क्स को देखते हैं, जैसे कि बुक कीपिंग, ट्रैवल बुकिंग एंड पैकेज सॉफ्टवेयर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारा फोकस ऑफ सर्विस प्रोसेस हो और इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस हाई हो, तो वी हैव टू टॉक अबाउट प्रोफेशनल लिंकेजेस, जैसे कि एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, पब्लिक रिलेशंस, लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड हम जो रिलेशनशिप्स हैं वो अपने एस्टैब्लिश प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में वो करेंगे. आप इन तीनों कैटेगरीज को, जिसमें कि अभी हमने प्रॉपर्टी, पीपल एंड प्रोसेसेस की बात की, इनको मटेरियलाइज करना कैसे है उसके ऊपर अब हम डिटेल कर रहे हैं.
डिटेल डिस्कस मैं आपसे कर रहा हूं कि आउटसोर्सिंग कंसिडरेशंस में अगर आपको लॉन्ड्री जेनिटोरियल स्टाफ एंड वेस्ट डिस्पोजल के फैसिलिटीज की बात करनी है, तो आपका जो कंसर्न होगा फैसिलिटी सपोर्ट सर्विस के केस में, दैट वुड बी यू हैव टू फोकस अपॉन लो कॉस्ट, आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबल party to evaluate performance, and precise specifications can be written. लेकिन अगर आपको इक्विपमेंट सपोर्ट की जरूरत है तो इक्विपमेंट सपोर्ट सर्विस के केस में यू हैव टू फोकस अपॉन एक्सपीरियंस एंड रेपुटेशन ऑफ वेंडर, availability of vendor for emergency response, and designate person to make service call and to check that service is satisfactory or not. ठीक है, अगर आपको फोकस पीपल के ऊपर है तो एम्प्लॉय सपोर्ट के केस में, सपोज इन टर्म्स ऑफ फूड सर्विस, प्लांट सिक्योरिटी, टेम्पररी पर्सोनल, आपको क्या करना होगा? कॉन्टेक्ट वेंडर क्लाइंट्स फॉर रेफरेंसेस, specifications prepared with end user input, and evaluate performance on a periodic basis. इन बातों को मद्देनजर रखकर you need to go for outsourcing. लेकिन अगर आपका फोकस ऑन पीपल है और सर्विस इंपॉर्टेंस वो हाई है, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट के केस में आपको क्या मद्देनजर रखना होगा? उसमें वो कह रहा है कि एक्सपीरियंस विद पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, involve high level management in vendor identification and selection, contact vendor client for references, and use employees to evaluate vendor performance. और ये हम ट्रेनिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर, इन तमाम कंसर्न्स में इन पॉइंट्स को जहन में वो रखेंगे. लेकिन अगर आपका फोकस ऑन प्रोसेस जो है वो प्रोसेस एस्पेक्ट है, तो फैसिलिटेटर के केस में आपको क्या करना होगा? when you talk about bookkeeping, travel booking and package software, आपको knowledge of alternate vendors important, ये इसके ऊपर नजर रखनी होगी इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में. Involve end user in vendor identification, references on third party evaluation useful, and have user write detailed specification. ये चीजें आपके गाइडलाइंस हैं, considerations हैं for outsourcing related to facilitator service. और प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में आपकी जो आउटसोर्सिंग कंसिडरेशंस होंगी, दे आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व हाई लेवल मैनेजमेंट इन वेंडर आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, रेपुटेशन एंड एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड परफॉर्मेंस एवेल्युएशन बाय टॉप मैनेजमेंट इज ऑब्वियसली द मेन कंसर्न यू नीड टू फोकस अपॉन. ओके, तो यहां पर अब हमने प्रोसेस के केस में, आपके पीपल के केस में गो थ्रू किया, और पोजेशंस के केस में गो थ्रू किया कि आपको किस तरीके से अपनी आउटसोर्सिंग कंसिडरेशंस को वो मद्देनजर रखना चाहिए. अब अगर हम एक टिपिकल सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग के केस में बात करें, तो वी हैव सपोज द सप्लाई चेन वुड स्टार्ट फ्रॉम द वेंडर्स, द वेंडर्स वर गिविंग अस द सप्लाईज, वहां से फिर आपकी जो मटेरियल है दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, that transported material is moved towards the warehouses. From the warehouses it is further transported to the factory area. From the factory area it is further transported to the warehousing as a finished product, and from that warehouse of the finished product it is further transported to the markets and the customers. और यहां से आपका एक information flow would go back into the line. ओके, सो रॉ मटेरियल की एक्सट्रैक्शन से लेकर फिनिश गुड की डिलीवरी तक ये हमारे पास एक टिपिकल सप्लाई चेन नेटवर्क वो एस्टैब्लिश हो जाता है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, एंड व्हेन वी टॉक एंड फोकस अपॉन ओनली वन फर्म. लेकिन एक इंडस्ट्री के अंदर ऑब्वियसली देयर इज नॉट जस्ट वन फर्म व्हिच इज ऑपरेशनल, देयर इज अ हब एंड द वेब ऑफ फर्म्स व्हिच आर ऑपरेशनल इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. एक पूरा सेक्टर है, एक पूरा क्लस्टर है जिसमें के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट एक्चुअली कर रही होती है. सो उस केस में, और हमें इस बात का भी अंदाजा है कि इट इज नॉट जस्ट दैट देयर इज वन प्रोडक्ट मेड विद वन सप्लाई, देयर कैन बी मल्टीपल सप्लाईज व्हिच आर यूज्ड इन मेकिंग अप ऑफ वन प्रोडक्ट. ओके, सो इस केस में हमारे पास एक कंसर्न डेवलप करता है व्हिच इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टियर्स ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पर्सपेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल, वी हैव फोकस ऑन द लोकल फर्म. ओके, so the local firm in my example is a cereal manufacturer. लेकिन cereal को बनाने के लिए you have to talk about a polythene bag, we have to talk about floor processes, we have to talk about corrugated manufacturing. ठीक है, so इन तमाम चीजों को अब आप एसोसिएट कैसे करोगे? हमारे पास cereal manufacturer जो एक फोकल फर्म है, उस केस में we have upstream जिसमें के tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 different suppliers हैं, and we have a downstream जिसमें के again हमारे पास grocery distributors हैं, हमारे पास retail distributors हैं, retail outlets हैं, and then we have the final consumer जो उसको buy कर रहा है. और इस सारे process में there are products
and services which are flowing from the upstream to the downstream, and then there is information and planning which is actually flowing on both way. Okay, इसी तरह अगर हम सर्विस एग्जांपल की बात करें तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी के केस में भी हमारे पास अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम अवेलेबल है. अब अपस्ट्रीम रिलेटेड टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी, उसमें हमारे पास टेम्पररी लेबर प्रोवाइडर है, उसमें हमारे पास जनरल कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग है, उसमें हमारे पास मैट्रेस सप्लायर्स हैं, उसके बाद हमारे पास फूड सर्विसेज हैं, देन मेडिसिन, देन इक्विपमेंट, देन मशीनरी. देयर आर सो मेनी like supplies we are actually looking at in the upstream context. So we have the focal firm. उस फोकल फर्म के केस में then we have to talk about कि upstream हम tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 and so on हम कितनों की बात कर रहे हैं. Then downstream we have to see कि हमारे पास किन किन levels के ऊपर downstream movement वो available है. उसके बाद product and services are flowing from the upstream to the downstream, and obviously information and planning is going both way. ओके अब यहां पर इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि जब हम स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करें या फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करें तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इस बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में और फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में एज ए स्ट्रेटेजिक कंसर्न आप कितने टीयर्स तक और किन किन सप्लायर्स को और किन किन बायर्स को वो टेकअप वो करना चाह रहे हो. Okay, तो we have to be very much rational about these things कि हम जब backward की बात कर रहे हैं तो either it is going to be the total backward vertical integration or partial backward vertical integration or we are going to operate non-integratedly. तो ये तीन तरह के डिसीजंस हमें अपस्ट्रीम मूवमेंट और डाउनस्ट्रीम मूवमेंट में करने पड़ते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन और नॉन इंटीग्रेशन. अब ये जो भी हमने इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में देखा कि वी हैव अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. एट द सेम टाइम जब हम वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के इन हाउस भी एक्टिविटीज वो ऑपरेट ऑब्वियसली कर रही हैं. जो ऑर्गेनाइजेशन के इन हाउस एक्टिविटीज होती हैं उनको हम वैल्यू चेन या कॉर्पोरेट वैल्यू चेन का नाम वो दे सकते हैं. अब उन एक्टिविटीज में हमने अपनी आसानी के लिए एक्टिविटीज को दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर लिया. वी हैव सपोर्ट एक्टिविटीज एंड वी हैव प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज हम उन एक्टिविटीज को कहेंगे जो कि एक डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ या सर्विस डिलीवरी के साथ एसोसिएटेड हो, और सपोर्ट एक्टिविटीज हम उन एक्टिविटीज को कहेंगे जो प्राइमरी एक्टिविटीज की प्रॉपर एग्जीक्यूशन को सपोर्ट कर रही हो. ओके, अब इन दोनों तरह की एक्टिविटीज में, प्राइमरी एक्टिविटीज में, सपोर्ट एक्टिविटीज में हमारी दो तरह की कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसको वैल्यू एडेड कॉस्ट और नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट का नाम हम वो देते हैं. वैल्यू एडेड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट एंड सर्विस में वैल्यू एडिशन का सबब बन रही है, जबकि नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है कि जिसके होने से हमें कॉस्ट तो बियर करनी पड़ रही है लेकिन प्रोडक्ट एंड सर्विस की वैल्यू में कोई फर्दर एडिशन वो नहीं हो रहा. जैसे कि आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तमाम आपकी नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट में काउंट वो की जाती हैं. और नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट को कम से कम करने के लिए फिर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं, जैसा कि हमारे पास जस्ट इन टाइम की टेक्निक है कि जिसमें आप मेक टू ऑर्डर की बात करते हो कि आप कम से कम इन्वेंट्री के साथ ऑपरेट करोगे. सो ऑब्वियसली जस्ट इन टाइम के अपने कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स भी होंगे, लेकिन दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू बियर इन माइंड जब हम वैल्यू चेन नेटवर्क्स की बात वो कर रहे हैं. सो अब हमारे पास इस पूरे वैल्यू चेन प्रोसेस में जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज का जिक्र कर रहे हैं तो वी हैव इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जिसमें रॉ मटेरियल हैंडलिंग एंड वेयरहाउसिंग की बात की जा रही है. देन देयर इज ऑपरेशंस व्हिच इज टॉकिंग अबाउट मशीनिंग, असेंबलिंग एंड टेस्टिंग. देन देयर इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स व्हिच इज टॉकिंग अबाउट वेयरहाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. एंड देन देयर इज मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज. ये तमाम चीजें आपके प्राइमरी एक्टिविटीज के कंपोनेंट्स वो कहलाते हैं. और सपोर्ट एक्टिविटीज में वी हैव फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट. ये तमाम एस्पेक्ट्स आपके सपोर्ट एक्टिविटीज के कंपोनेंट्स वो कहलाएंगे. एंड ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि इन तमाम के साथ आपकी वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट जो है वो एसोसिएटेड है. सो व्हाट वी हैव टू बियर इन माइंड कि आपका ये जो सप्लाई चेन एंड वैल्यू चेन नेटवर्क्स हैं, दे आर ऑलवेज मूविंग साइड बाय साइड. फॉर एग्जांपल जब हम वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं तो इट इज कमिंग फ्रॉम द कस्टमर टू प्लानिंग टू इनोवेशन टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द सप्लायर अलाइनमेंट एंड सोर्सिंग. और जब हम सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं तो मटेरियल सप्लायर टू लॉजिस्टिक्स टू प्रोडक्शन टू सेल्स एंड मार्केटिंग एंड टू द कस्टमर. सो दैट इज हाउ द सप्लाई चेन नेटवर्क it is in movement, and this is obviously a two-way process जो कि continuously operational एक organizational context में वो रहता है. अगर हम वैल्यू चेन को ऑनलाइन में ले जाएं तो ऑनलाइन बिजनेसेस के केस में
हमारे पास एक्टिविटीज उसी तरह ही डिफाइन की जाएंगी, वी हैव प्राइमरी एंड वी हैव सपोर्ट, लेकिन अब उस केस में डेफिनेशंस की जो एलेबोरेशन है वो मुख्तसरन बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में we'll be talking about real-time integration scheduling, shipping, warehouse management, demand management and planning, and advanced planning and scheduling across the company and its suppliers. इन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा because ये ऑनलाइन आपका सारा ऑपरेशन वो चल रहा है। इन केस ऑफ ऑपरेशंस, integrated information exchange, scheduling and decision making in in-house plants and contract assemblers and component suppliers, उनके साथ रियल टाइम के ऊपर आपकी जो डेटा एक्सचेंज है वो हो रहा होगा। आउटबाउंड के केस में रियल टाइम ट्रांजैक्शन ऑफ order whether initiated by an end customer or consumer and salesperson or a channel partner, तो अब इस ऑटोमेटेड आपके जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के एस्पेक्ट्स हैं इनको मद्देनजर रखा जाता है। लाइकवाइज आपका जो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी वेब बेस्ड, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा दैट वुड बी सेल्फ सर्विस पर्सनल एंड बेनिफिट मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन, और वेब बेस्ड ट्रेनिंग्स आप प्रोवाइड करोगे। टेक्नोलॉजी के केस में कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट डिजाइन अक्रॉस लोकेशंस, इन चीजों को फोकस किया जाता है। और ऑब्वियसली प्रोक्योरमेंट के केस में इंटरनेट एनेबल्ड डिमांड प्लानिंग, रियल टाइम अवेलेबल टू प्रॉमिस, कैपेबल टू प्रॉमिस एंड फुलफिलमेंट, इन तमाम चीजों को इंश्योर वो किया जाता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजेस होती हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स होते हैं आपकी, जिसको हम MRP1 और MRP2 के नाम से जानते हैं, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स की बात की जाती है। फिर ERP सिस्टम्स आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो इंटरनेट के केस में आपका जो फंक्शनल एग्जीक्यूशन होगा इस सारे सप्लाई चेन का, ऑब्वियसली दैट हैज टू बी थिंक एंड डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन फैसिलिटी, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं दे वुड बी इवॉल्विंग एंड दे वुड बी कमिंग इन। अब याद रखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के इन हाउस जो इंटरनल वैल्यू चेन है, इंटरनल वैल्यू चेन में हमारी इंटीग्रेशन चाहिए तमाम फंक्शनल एस्पेक्ट्स की। फॉर एग्जांपल द R&D should be in integration with operations, operations should be in integration with logistics, logistics should be in integration with marketing, and marketing in relation with HR, accounts, finance, supply chain, information technology and executive management। ये तमाम आपके जो एस्पेक्ट्स हैं they are to be operated integratedly like a systems इंटेलिजेंस, सिस्टम्स अप्रोच, सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में हम चीजों को वो डिफाइन करते हैं और होलिस्टिकली उनको विजुअलाइज करते हैं। बट वन थिंग वी हैव टू बियर इन माइंड कि ये जो इंटीग्रेशन हम यहां पर देख रहे हैं, दिस इंटीग्रेशन इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इज लिंक्ड विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें कि हमारे पास अपस्ट्रीम सप्लायर्स के साथ एसोसिएशन एज ए सप्लाई मैनेजमेंट भी है और डाउनस्ट्रीम कस्टमर्स एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स भी है। और ये तमाम डिपार्टमेंटल जो कंसर्न्स हैं ये एक दूसरे के साथ इन ए चेन कनेक्टेड नहीं है, दे आर connected in a all channel network rather than in a chain network, they are connected in a all channel network। और ये जो ऑल चैनल नेटवर्क है ये भी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की हद तक महदूद नहीं है, एक्चुअली दिस इज लिंक्ड विद अदर फर्म्स एज वेल, बिकॉज हमारी जो फोकल फर्म है उसका अपना नेटवर्क है, अपने नेटवर्क के साथ, अपने इंटरनल लिंकेजेस के साथ दैट इज कनेक्टेड विद अ सप्लायर, सप्लायर का अपना नेटवर्क है, वो अपने नेटवर्क के साथ कनेक्टेड विद अ सप्लायर। इसी तरह अगर हम डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो वी हैव द कस्टमर एंड देन वी हैव द कस्टमर्स कस्टमर, और इन तमाम की आपस में जो इंटीग्रेशन है दैट इज टू बी विजुअलाइज्ड, और इन तमाम के आपस में इंटीग्रेट होने से ही हम एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और राइट पर्सपेक्टिव में वैल्यू फैसिलिटेशन क्रिएट वो कर सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में प्लीज ज्वाइन कीजिए, वहां से हम बात को कंटिन्यू करते हैं।